अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या उसकी तफसील बताएंगे। 5 साला बच्चा जो अपने वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाता है, गले में डोर फिरती है और उसका गला कट जाता है और वो जाँ बाग हो जाता है। लाहौर पुलिस की जानिब से दावा तो किया जाता है कि पतंगबाजी पर मुकम्मल कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के दावे ये धरे के धरे दिखाई देते हैं। 5 साला बच्चा अपने वालिदैन का लख्ते जिगर इस दुनिया से चला जाता है। क्या हुआ, किस तरह से बच्चे की जान गई, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या हुआ, 5 साला बच्चा जो है वो गले में डोर फिरने की वजह से जहाँ बाग हो गया। बच्चे का वालिद है जो रात को अपने ससुराल से अपने घर आ रहा था। किस तरह से ये वाक़या पेश आया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया, की होया सी? तुसी कित्थों आ रहे सो? मैं आखिरी मिनट तो आ रहा सां, ठीक है। चाइना स्कीम नाले ते हैगा सां मोटरसाइकिल ते रस्ते दे विच डोर लमकी सी, मैनूं पता नहीं लगा, हनेरा सी। मैं थोड़ी जी मोटरसाइकिल तेज़ की ते बच्चे ने कहा पापा मेरी गर्दन, मैं ब्रेक लाई है, इन्नी देर च ना उसकी गर्दन कट्टी गई सी। मैं हत्थ दे नाल डोर खिंच के मैं पिछे सुट्टी है तो खून दियां धारां शुरू हो गई, ओहदियां नसां कट्टियां गईयां सन। अच्छा, फिर तुसी हस्पताल लैके जी गए? फौरी हस्पताल लै गया नवाज शरीफ। उस टाइम ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਕੂਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਰਾਤ 12:30? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਲਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 302 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਰ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। बच्चे के नाना है जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं क्योंकि इन्हीं के घर से ये आ रहे थे। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ को आए नहीं तकरीबन 10:30 बजे। 10:30 ਵਜੇ? हाँ जी। तो वो पैसे के सवाल किया, अबू मैंने पैसे चाहिए ने। अच्छा। मैं कहा अच्छा बेटा दे देने, जो भी देना आपस च प्यो धी पुत्र की गल कोई नहीं दी जी। मगर ये वापसी जो आए ने मेरे को फ़ोन किया 1:45 बजे। 1:45 बजे फ़ोन किया, मैं सुता ऐसे, फिर मैं उठिया देखिया फ़ोन किदा, फिर मैं बैक कॉल की, मैं कहा देखा तो बच्ची दस मूँ, उन्हें कहा बूआ गल हुई है। मैं कहा अच्छा मैं हुई होने। फिर मैं इन फ़ोन किया मुंडे नूं, मैं कहा पुत्र है कित्थे तू असले? कहना जी मैं असले फौज असी हस्पताल नहीं, असी उत्थे पहुँच गए। असी 5 बंदे रात नूं, 2 एक मेरी बेटी ते 5 असी, एक मामा ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਜੜ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਡੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਡੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 302 ਦਾ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਸਿੱਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਮਕਸਦ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਾਸ करके सख्ती की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सख्ती कानूनी घट। कुछ और हैं जी मोहल्लेदार यहाँ पे जो इस बच्चे के घर वालों के साथ जो है घर के साथ ही रहते हैं। एक बुज़ुर्ग है हमारे पास, क्या हुआ जी वाक़या? ये मेरे हमसाये हैं, इनके भाई का बेटा है। उसने सुबह मुझे मिला है, वो कह रहा मेरे भाई का जो बेटा ना वो ऐसे ऐसे डोर फिर के ना वो उसकी हलाकत हो गई है। ये भगतपुरा में रहते थे, उधर जगह ना होने की वजह से इधर ले आए लाश को हॉस्पिटल से। लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये बच्चे को जितना ये बच्चे के लिए जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि हुकूमत को हर चीज़ का पता है। हुकूमत किसी चीज़ को नहीं देख रही, वो अपने इलेक्शन कुर्सियों के पीछे लगे हुए हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आवाम मर रही है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये जो हलाकत हुई है, अब उसके माँ बाप को इसका सिला कौन देगा? उसकी कमी कौन पूरा? हाँ जी, मासूम बच्चा, उसकी कौन कमी पूरी करेगा? हम साए हैं, हमें इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि हमारी आंखों में आंसू जो है ना वो नहीं सूख रहे। हमारे मोहल्लेदार औरतें, बहन भाई ये सब रो रहे हैं उस बच्चे को देकर। ऐसा बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे वो एक फूल सोया हुआ है। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि हुकूमत से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, डोरे बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। हुकूमत को सब कुछ मालूम होने के बावजूद हुकूमत कंट्रोल, ये काहे की हुकूमत है? मैं इसको हुकूमत नहीं समझता। जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, ये 2, 3, 4, 5 साल से ये बिल्कुल मुल्क का निज़ाम बेड़ागर कर दिया है। मुल्क जो है ना हमारा, अच्छा ये पाबंदी तो है कि पुलिस ने इसको कंट्रोल करना है कि कोई पतंगबाजी या पतंग का सामान, डोरें, पतंगे कोई फरोख्त ना करे। तो ये तो फिर हुकूमत के साथ साथ पुलिस की। जी, ये हमारी जो पुलिस है, ये तो अगर कोई किसी को पतंगबाजी करते हुए देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उधर जाकर दूसरी गली में वो पैसे ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये मेरे यानी कि दो तरह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने गलत चीज़ है, जो गलत चीज़ है वो गलत है। ये पुलिस आई, इन्होंने ना मुझे बच्चे को पकड़ा, तो हमने इनके साथ बातचीत की। मैंने कहा हम ये चीज़ जो है ना हम वहाँ फ़ोन करते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं। ये कह रहे थे हमें पैसे दें। हमने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने जाकर पर्चा उधर सबमिट कर दिया। हम फिर कचहरियों में जाकर वो ज़मानत करा के बच्चे के लाए। तो ये सारा ये तरीक़ाकार जो गलती है वो गलती है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि पैसे लेकर जान छोड़ दी जाए। ये तो काम। जब पुलिस जो मुकदमा दर्ज कर लेती है, आप क्या समझते हैं उसका कितना फ़ायदा आवाम को होता है? पकड़े तो जाते हैं मुलज़िम, फिर मुलज़िम पकड़े जाते हैं, लेकिन वो फिर अंदर खाने में काफ़ी कुछ यानी कि साजबाज होती है, जिसकी वजह से ये मामला क्लियर नहीं होते। अब मैं इससे बहुत ही यानी कि अपसेट है कि ये हमारी हुकूमत से ना पुलिस कंट्रोल हो रही है, ना आवाम कंट्रोल हो रही है। ये क्या है कि हुकूमत है? हुकूमत को चाहिए कि एक लॉ बनाए, लॉ के तहत उसके ऊपर अमल दरामद कराएं। अगर अमल नहीं दरामद करा सकते तो ये असम्बलियों में बैठने का क्या फ़ायदा? असम्बलियों में बैठे हुए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मुल्क का कुछ नहीं करते, आवाम का कुछ नहीं करते। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग जो है ना वो बेचारे सारे आवाज़ार, परेशान, बेचैन हो गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पुलिस, ये जो हमारी हुकूमत है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये इस पर सख्ती से अमल करें। ये अगर कोई कानून बनाते हैं उस पर सख्ती से अमल कराएं, वरना ये
किसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कानून बनाकर उस पर अमल नहीं करना तो कानून बनाने का कोई कोई फ़ायदा फायदा नहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चे के दादा हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इनसे बात करते हैं। बुजुर्गों, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, फूल जैसी छोटा जहा। सर आज मुझे तो पता नहीं है, उसको पता, उसने मुझे बताया है कि 2 बजे फ़ोन किया है, मैं अस्पताल गया हूँ, उसकी डेथ हो गई है। कहता अब्बा जी मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ, पीछे मेरी बीवी बैठी है, पता नहीं लगा किसी वक्त गला काटा गया इसका। उसने मुझे बताया, मैं वहाँ गया हूँ और मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। 5 ये देखो मेरे पाँव, 20 साल मैंने लोहा काटा है नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ से वहाँ। अच्छा, हाँ इत्तेफाक बाउंड्री में। हाँ, मैं तबाक पौनी 20 साल लोहा काटा बड़ा, जिसको 12 इंची बोलते हैं। ये 5 मन का टोटा गिरा मेरा, 2 पैर पर 2 उंगलें मेरी काटी हुई हैं। बस कुछ नहीं है, वो है जो है, कोई कुछ नहीं है। पोते को खिलाते थे साथ जी। खेलता था आपसे पोता? हाँ जी, भागता था, ट्यूशन जाता था, बातें करता। मैं कह रहा हूँ ये 10 ले ले बेटा, नहीं पापा अब्बा मैंने 20 ले ले। मैंने चल 20 ही ले ले, मुझे जुत्ती ले दो, मैं तुझे ले दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। कहना अम्मा मेरी जुत्ती टूट गई है। मैं कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब गया यहाँ से मिल के गया था आपको? नहीं जी, मुझे कहाँ मिला है, मुझे जब नहीं आया मिला। तो मैं तो जब फौत हुआ फिर गया, मैं मतलब वहाँ मेरे पास जाता था, मैं वहाँ लगा हूँ। इधर मेरा साहब है, उसने वो रोटी पकवा के उसने दी है। उन्होंने कहा और भी कुछ चाहिए तो ले लो बाबा जी, घबराना नहीं, किसी टेंशन नहीं लेनी। मैं कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा भाई तुम ये हमारे पास काम करते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ये जाकर वहाँ जूठे देता था। वो कह रहे थे बड़ा बच्चा है, मैं जी हाँ बड़ा बच्चा है। अच्छा ये बताएं कि आप तुसी कोई हुकूमत नूं कोई मुतालबा करना चाहते हो कि ਇਹ खूनी खेल जड़ा है ये रुकना चाहिए, पतंगबाजी रुकनी चाहिए? ये नहीं रुक सकती। ये ना तो मुसलमान ने है, मुसलमान नहीं नमाज पढ़ते ने तो बेईमानी भी करते हैं। जो मैं नमाज दिलों नहीं पढ़नी, मेरी नमाज किसी काम नहीं, ना उत्ते तो ना थले। साढ़े पल्ले की जैसी मर्जी है तो सानू की होना है, साढ़े को कुछ भी नहीं है। उन्हें कहा इधर करो तो वो रहमत ना, भावें अपनी रहमत ना माफ़ कर दे तो उसकी मर्जी है, लेकिन साढ़ा कोई अमल नहीं। असी 5 वक्त नमाजी हाँ, लेकिन कुछ नहीं है। मेरा छोटा बच्चा है। मैं किसको जाकर बताऊँ किसी ने बच्चा मेरा? मैं 2 बजे का जाकर वो नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अब पता नहीं मैंने कितने दिन बैठना है, कितने दिन जागना है। किसी ने हमने रोटी नहीं दी, जबकि यह मजदूरी की है। 20,000 किराया दे दो, 50,000 मकान का दे दो, एडवांस कहाँ से दे दो? मैं तो भूखा पड़ा हुआ हूँ, तो मैं कहाँ से दूँ पैसे? इतने लागे बच्चे मेरे धक्के खा रहे हैं। ये था जी अहले इलाका का, और बच्चे के दादा थे, बच्चे के वालिद से भी बात हुई और मोहल्लेदारों से भी बात हुई। इस खूनी खेल ने कई माओं की गोद उजाड़ दी, कई बच्चे, कई माँ बाप के लखते जिगर इसी तरह से इसी खूनी खेल की वजह से इस दुनिया से चले गए। लेकिन पुलिस की जानिब से और हुकूमतों की जानिब से दावा तो किया जाता है कि मुकम्मल पतंगबाजी पर कंट्रोल कर लिया गया है, नए कवानीन भी बनाए जाते हैं और पुलिस के हवाले से बहुत बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं कि पतंगबाजी को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, कई माओं की गोद उजड़ जाती है, कई माँ बाप के फूल जैसे मासूम बच्चे जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। हाई अफसोसनाक वाक़या जी, बच्चे की 5 साला बच्चा है जिसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है और लवाकिन, मोहल्लेदार और बच्चे की वालदा भी यहाँ पे मौजूद है। कोशिश करते हैं कि इस गम में, जिस गम से वो निढाल हैं, उनसे बात करने की अगर बात हो सके। बाजी की होया, तुसी कित्थे वो आ रहे सो ते किस तरह आया, थोड़ा दस सकोगे? वो अपनी आंटी के घर गया था, आंटी के घर से वापस आ रहा था, वहाँ पे हम लोग आए हैं।
आगे मोटरसाइकिल हमने कट मोड़ा नाले वाला, वहाँ से मुड़े आगे हमें पता नहीं चला कि डोर उसके कैसे फिर गई है। डोर के गए जब ज़्यादा ज़ोर से खींच के लगी है, जब उसने चीख मारी है, वहाँ से हम लोगों ने उसको पकड़ा है, सीधा हॉस्पिटल ले गए उसको हम। अच्छा, जब चीख उसने मारी है तब आपको पता चला कि इसका गला कट गया? हाँ जी। अच्छा, पहले नहीं आपको नजर नहीं आया या नहीं, देखा? अंधेरा था, अंधेरा था। अंधेरे वाली साइड फिर पे आप था। हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी, नवाज शरीफ जो कोड़ी को वहाँ पे लेके गए हम उसको। ठीक है। वहाँ से उन लोगों ने पट्टी वगैरह की, खून वगैरह रोका है। बाद में उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, ये अपनी बच्चा है। कितने बच्चे हैं आपको? 3। ये बड़ा बेटा था? हाँ जी, बड़ी बेटी है, ये छोटा ये है, ये बेटा है। अच्छा, ये पढ़ता था? नहीं, इसने अब आज कहता मैंने आज जाना है स्कूल पढ़ने। अच्छा कल मुझे कहता मैंने स्कूल जाना, मुझे छोड़ के आओ स्कूल। अच्छा। वो है बेटी मेरी। तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस तरह के वाक़यात पे हुकूमत से? मैं तो यही कहूँगी कि जिन्होंने ऐसे किया उनको सजा, सख्त सख्त सजा मिले। इसमें बच्चों का क्या कसूर है? वैसे कहते हैं हम लोगों ने पाबंदियाँ लगाई हैं, कौन सी पाबंदियाँ लगाई हैं? अगले बच्चे की जान चल जाए, किसी का तो कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। 5 साल अली हैदर की नानी हैं जी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अच्छा जी, अपना माजी बड़ा अफसोसनाक होया, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ आ रहा सी अली हैदर? नहीं जी, मेरी बड़ी बेटी के घर से आ रहा था। अच्छा, घर से आ रहा था? बड़ी बेटी के घर से। अच्छा, तो कैसे फिर रास्ते में आए हैं ये। आपको इतला कब मिली? हमें तो रात को 1:30 बजे मिली। अच्छा, रात को 1:30 बजे इतला मिली। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगी? मैं बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो दुकानदार हैं उनको पीछे से रोके। मासूम बच्चे हैं आजकल, किसी का क्या तबार। कुछ ख़वातीन भी हैं जी, अहले इलाका है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हमसाए हैं इन लोगों के, ये गरीब लोग हैं, ये कुछ कर भी नहीं सकते। इनके साथ पुलिस जो ये खेल तो होता ही रहता है, खूनी खेल तो होता ही रहता है, मगर जो पुलिस आती है इधर आके वो रिश्वत लेके चली जाती है, किसी मुस्लिम को नहीं पकड़ती। वो अपना काम करके तो चली जाती हैं, मगर ये खेल ख़त्म होना चाहिए। ख़ासकर डोर और तंगों वाली दुकानें सील होना चाहिए। पुलिस कहती तो है कि वो पुलिस बड़े मुलजमान पकड़ती है, फिर भी ये सब कुछ पकड़ती, यही तो बता रहे हैं, तो पकड़ती है। बस घंटा 2, 5,000, 6,000 किसी से लिया, छोड़ दिया, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जिनकी बच्चे जो हैं, कितनी मेहनत से ये बच्चे आते हैं दुनिया में। बिल्कुल सही है। ये एहसास नहीं, कभी आज तक कोई मुजरम रहा है? 1 लाख से ज़्यादा कोई मुजरम नहीं रहा। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि इन गरीब लोगों पर तरस खाएं और जो मुस्लिम है उनको पकड़ें आप। जी ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी जी इस जी, हवाले मैं में? ये कहना चाहूँगी कि ये जो खूनी खेल चला हुआ है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी लग भी रही है, काफ़ी सर्च भी होता है, आके पकड़ते भी हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी काफ़ी जिम्मेदारी बनती है ना, कि अपने बच्चों को भी रोकें। इन चीज़ों, छतों पे जाके बच्चे पतंगे उड़ा रहे होते हैं, डोर पकड़ते हैं, इस चीज़ को भी रोकना चाहिए और दुकानदारों को इस चीज़ पे पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो आप क्या समझती हैं कि जो पुलिस और हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो इतनी नहीं, वो अपनी कारआमद पूरी नहीं? कड़ी कोशिश कर रही है, हुकूमत भी पूरी कोशिश करती है, पुलिस वाले भी आके देखते हैं। मैंने कितनी दफ़ा आके देखा है कि लोगों के घरों में जाके चेक करते हैं, आके उनको पकड़ के भी लेके गए हैं। लेकिन जो पीछे से ये डोर केमिकल वाला आ रही है ना, इसको रोकना चाहिए, कि ताकि बच्चों की मासूम बच्चे, जो जवान बच्चे, किसी के बाप, किसी का बेटा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बहुत जानी नुकसान वापस तो नहीं हो सकता ना। माना कि एक ये खेल है इनके लिए, या एक लोग बच्चे इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, या उनके लिए एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इस अच्छी चीज़ को उन्होंने बहुत बुराई की तरफ ले गए। बच्चे की खाला भी हैं जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जी। बड़ा अफसोसनाक होया बाजी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बाजी इंसाफ किस तरह मिलेगा? पुलिस बड़ी कोशिश कर दी है, हुकूमत बड़े ऐलानात कर दिए, किदे को इंसाफ का मुतालबा कर दिया? जिधर से डोर बनती है, जाए हजर पकड़े उन्हें। मैं देखती हूँ कि कैसे इंसाफ नहीं मिलता। उसके तो बच्चा चला गया।
हमें भी पता चला ना कि हमारे साथ इंसाफ किया। जब ये उसकी वा- ये वालदा को बच्चा मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। पकड़े हैं जाके जाए डोरे वगैरह बनती हैं। मैं देखो इंसाफ हो रहा है यहाँ। प्राइवेट जॉब करता है बंदा, घर मजदूरी करता है, लगी रोती है, किराए का मकान है। अब जेठ के घर लेके वो आई हुई जनाजा, ये आप देखें, इंसाफ तो नहीं है कि वैसे कहता है जी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ कहाँ से मिलेगा हमें, ये बता दो। अच्छा भला बच्चा खेलता खिलाता है, हाथों से क्या। बाजी ऐसा भी होता है कि पुलिस कहती है कि जी अगर किसी इलाके में डोर फिरती है, किसी की जान ले लेती है, तो उसके एसएचओ को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। आप ये समझती हैं कि कानून ये काफ़ी है, इससे बच्चों की जान बच सकती है? जहाँ डोर बनती, मैं ये कह रही वहाँ मुअत्तल करने का क्या फ़ायदा हो जाना। जहाँ डोरे बनती उनको पकड़े जाके। थोड़ी सी देर के लिए वो करेंगे, थोड़ी देर के हमें पता, आज हमारा बच्चा के कल को किसी और के बच्चे के साथ जाना है, ये इंसाफ तो नहीं ना हो रहा। रातों के टाइम अमूमन गुड़ियाँ उड़ती हैं, जाके लाहौर कैंट में देख लें, अमूमन रात को गुड़ियाँ पतंगबाजी इतनी हो रही कि कुछ नहीं। ये किधर पुलिस सो रही है ना, कि उन्हें नहीं पता लग रहा। जब कोई कत्ल हो जाए बच्चा, तो जब आ जाएंगे जी हाँ जी ये तेज़ कानून हो गया, फिर उसके बाद उन्हें पता ही नहीं कि दिन के टाइम भी जाके लाहौर कैंट में देखें ज़रा, आपको पता लगे सदर कैंट में कैसे इस टाइम भी पतंगबाजी हो रही। ये है कि जहाँ डोर बनती है ना, उन लोगों को पकड़े बस। ठीक है। हाँ, तो फिर तो ना होगी डोर तो ना गुड्डी उडेगी। बस ऐसा साड़ा है कि उस बंदे ने फड़िया जो डोर बनाते हैं। क्या ये आपके ख्याल में ये हुकूमत करेगी, ये बच्चे का अफवाह करेगी? देखिए जी, पुलिस ने एफआईआर तो दे दी है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। नहीं, अभी उनको चाहिए ना कि ये पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करे। अब जैसे उन्होंने बताया कि ये किराए पे रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं बेचारों का। एक तो मजदूर बच्चा, इतना अच्छा बच्चा पढ़ता पढ़ता चला गया, 5 साल का बच्चा, अभी कहाँ आएगा? हुकूमत ने क्या देगी? इनको मकान देगी, इनको क्या इसका तो आफत बनेगी, वो आपस में खाने की पड़ी हुई। उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ पता हम खा लेंगे, हम लूट ले गरीबों को। हाँ जी बाजी, आप बताएं क्या कहना चाह रही हैं? मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि सर ये मेरा भांजा है, वो मेरी बहन है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। डोरे बंद होनी चाहिए, गुड्डियाँ जहाँ बनती उस दुकानों को आग लगा देनी चाहिए। लोग गरीब आवाम भूख से मर रही और ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ऐसी हुक्मरान पे, ऐसी हुकूमत पे। मैं बस इतना कहती हूँ, मेरी बहन का बच्चा तो वापस नहीं आना, कम से कम खुदा के लिए लोगों के बच्चे तो बचाएं। इतना तो कर ही सकती है मीडिया, आवाम, हुकूमत, पुलिस सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, गरीबों की कोई औकात नहीं दुनिया में। फिर दुनिया में रहते क्यों है? पाकिस्तान इसके लिए है, जब हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। बस इतना ही कहना है कि आपकी मेहरबानी, ये दुकानें, ये गुड्डियाँ, ये डोरे सब बंद करवाएं, गरीबों की मदद करें बस। शादबाग के इलाके में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, 5 साला अली हैदर गर्दन पे डोर फिरने से जाँ भाग हो जाता है। उनके लवाहिकीन, उनके घर वाले, अहले इलाका क्या कहते हैं, सब कुछ हमने आपको दिखाया। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए जब हमने एसपी सिटी हमज़ा अमानुल्लाह से रब्ता किया, तो उनका कहना ये था कि वो किसी किस्म का बयान जो है टीवी पर कैमरे के सामने आकर देने से कासिर हैं। आप पतंगबाजी के हवाले से बहुत सारी कार्रवाइयों की प्रेस रिलीज जारी करते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि जब एक वाक़या आपके इलाके में पेश आ जाता है और उसके लवाहिकीन, बच्चे के जहाँ बाग होने वाले के वालिदैन और अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, उनके दुखों का, उनके दुख का मदावा करें, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। डीआईजी ऑपरेशन जो उनके इमीडिएट बॉस हैं, उनके कहने के बावजूद भी वो अपना मौक़िफ़ नहीं देते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ लेने की हमने बारहा कोशिश की। ये ज़रूर है कि डीआईजी ऑपरेशन ने लाहौर में 3 वाक़यात जो पतंगबाजी के होते हैं, जिसमें 3 अफराद, एक बच्चा जहाँ बाग और 2 नौजवान जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन तो लिया है जो इसके कसूरवार हैं, यानी कि पुलिस अफसरान, एसपी हों, एसएचओज़ हों, उनके ख़िलाफ़ शोकाज नोटिस जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से जारी करने के अहकामात तो किए गए हैं। शहर लाहौर के बासियों का क्या कहना है, क्या वजह है कि पतंगबाजी पर, इस खूनी खेल पर पुलिस काबू क्यों नहीं पा रही है, ये सब कुछ आप खुद ही उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। इसके बारे में हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई पतंगबाजी जो है ना एक बुरा खेल है।
जैसे कि गवर्नमेंट ने वफाकी सतह पे गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसने पाबंदी लागू की हुई है। चलो जी अच्छी बात है, मगर ये पाबंदी सारे शहरों में सब सिटीज़ में होनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा गुजरांवाला में परमिशन मिली पतंगबाजी की, फैसलाबाद में मिली, रावलपिंडी में मिली। लाखों लोगों की जानें दांव पर लगी होती हैं, लाखों बच्चे बाहर सड़कों पे फिर रहे होते हैं या स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं या लोग अपने कामों पर जाते हैं, उनकी जानों के लिए ये डोर फिरने का ख़तरा है। उस वजह से उनकी जान जा सकती है, किसी का बच्चा यतीम हो सकता है, किसी का भाई बहन से जुदा हो सकता है, किसी का बाप हलाक हो सकता है। हम इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस चीज़ पर खसूसी तवज्जो दी जाए और इस सिलसिले को रोका जाए ताकि किसी इंसानी जान का ज़िया ना हो सके। अगर कानून बना हुआ, कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है कि पब्लिक को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट ये चाहे, अगर इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करे तो हर चीज़ पे पाबंदी लागू हो सकती है। अगर ये गवर्नमेंट की ढील है तो हम आप लोगों से इल्तमास कर देंगे, अब हमारी आवाज़ बजरिया चैनल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को सख्ती से मना कर सके और लोगों की जानों का ज़िया बढ़ सके। जब कोई पतंगबाजी का शौक़ था ना तो तब हर एक का था, और जब से ये जाने जाना शुरू हुई हैं वो एक यही कह लो कि ये खूनी शौक़ हो जाता है। इसलिए क्योंकि अब मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को देख के अपने बच्चों को याद आती है कि यार हमारे भी बच्चे हैं, कल को कोई इस तरह ना, ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है। पर ये है कि पुलिस को जो लोग रात को या दिन को ये पतंगबाजी की डोरें तो रात को भी ऊपर आ जाती है ना, तो उसकी वजह से भी ये सड़कों पे हादसे होते हैं। तो जो लोग बड़े किसी लेवल पे करते हैं पतंगबाजी, तो उनको ना किसी तरीके से पुलिस को पकड़ना चाहिए। हालांकि ये कुछ लोग रात को करते हैं, और डोरें तो सड़कों पर ही आती है ना, गिरती हैं। तो इससे इस चीज़ से ना जो बंदा, जो पुलिस को ना रात को भी चाहिए देखे और दिन को भी चाहिए, जहाँ भी हो रही हो ना उसको कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, और वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये है कि कल अगर आज किसी का बच्चा है, कल हमारा बच्चा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अल्लाह ताला सारे को बच्चों को सलामत रखे। तो किसी से नहीं देखा जाता कि ये किसी का बच्चे का ये इस तरह का हो। वैसे पुलिस को ये चाहिए कि हालांकि कुछ मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे धागों से उड़ा रहे होते हैं ना, उस पर पुलिस कार्रवाई, झूठी कार्रवाई करके उनको गरीबों को तंग करने लग जाती है कि ये बच्चा गुड्डी डाल रहा सी। पर जिनकी जो डोर होती है ना, उनको नहीं कभी मैंने देखा कि उनको पकड़ के लेके गए हों और देखा हो कि उनसे कुछ डोरें या गुड्डे बरामद हुए हों। ये नहीं हम लोगों ने देखा। ये ज़रूर देखा कि मोहल्ले में से बच्चा किसी को धागे से उड़ा रहा है, उसको ले गया और पूरा ख़ानदान वो फिर थाने में पहुंच गया हुआ। इसका यही हल है कि जब वो ऊपर कहीं पे पतंगबाजी हो रहा है, बल्कि हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए कि हमारे साथ वाले घर से कोई पतंग उड़ा रहा है तो साथ वाले हमसाये को चाहिए कि जी ये किसी को रिपोर्ट करे या किसी को कोई बताए। तो इसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म होगा तो चाहिए। तो वैसे पुलिस को भी है कि हाल को पता चल जाता है कि कहाँ से पतंगबाजी हो रही है, पर वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरासर गलत है कि एक मासूम बच्चा है, वो तो उसके घर वाले ही जानते हैं ना कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो इसलिए ये दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो उनसे है ना, इसको देखें, इस पर एक्शन लें। कि सबके साथ हो सकता है। अब ये बिलफर्ज मैं अपने बच्चे को साथ लेके जा रहा हूँ बाइक पे, अगर अल्लाह ना करे ये डोर वगैरह बच्चे के गले में फिर जाती है तो इसको ना प्रॉपर तरीके से बंद करना चाहिए, पुलिस के एक्शन लेना चाहिए। बल्कि हमें पुलिस के ऊपर जाके एक्शन लेना चाहिए, चंद बंदों को इकट्ठा करके लेके जाना चाहिए कि यार आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। देखें जी, बात यह है कि ये लाहौर एक वसी इलाका है। पहले छोटा सा इलाका होता था, बसंतें आती थीं, डोरें भी चलती थीं। तो हमारे जो बड़े हैं, हमने तो आज तक गुड्डी नहीं उड़ाई, ना हमारे बच्चे उड़ाते हैं, ना हम उड़ाने देते हैं। तो पहले जो ये बसंत आती थी, ये मुहार चलते थे तो डोर ऐसी जहरीली नहीं होती थी। तो पहले धागे की डोर होती थी, बड़ी बड़ी लंबी, लोग छतों पे चढ़ के रात भी दिन भी गुड़ियाँ उड़ाइयाँ करते थे। आजकल ऐसी जहरीली डोर लोगों ने बनाई है, बनाने वाले भी लाजमी मुसलमान ही हैं, हमारे भाई हैं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि किसी की जान जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ख़ासकर हमारे लाहौर में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाहौर का अब इतना इलाका है कि इतनी आबादी है कि इसमें छोटा सा भी वाक़या हो जाए तो वो हो जाता है। लेकिन इसमें सड़कों पर इतना रश है कि डोर अगर गुज़र रही हो तो किसी को पता ही नहीं चलता।
ये पुल है हमारे ऊपर। इधर भी एक पीछे वाक़या हुआ था कि वो सुबह सवेरे ही माँ बेटा और बाप दोनों जा रहे थे कहीं, बेटे पे डोर फिरी, बेटा वहीं मर गया। तो पुलिस भी अपनी जगह पे ठीक है, वो ऐलानात भी करती है, हर इलाके में ऐलानात भी होते हैं, हम भी सुनते हैं कि जनाब जो गुड़ी उड़ाएगा या पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ़ पर्चा होगा। वो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन नामालूम इसलिए करते हैं कि उनसे कोई पकड़ा ही नहीं जाता। वो मोहल्ले में, हर मोहल्ले में तो नहीं घूमेगी ना, घूमेंगे भी तो कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा, छत पे चढ़ेंगे भाग जाएंगे लोग, लेकिन नामालूम इसलिए करते हैं कि उनसे कोई पकड़ा जाएगा। उनकी गफलत ये है कि वो ऐलान करके चले जाते हैं, तो गलियों में घूमें, थोड़ा सा पता चले। ये जब त्यौहार आते हैं तो उनको ये चाहिए कि जैसे उनके वो डॉल्फिन फोर्स हैं, वो गलियों में घूमती है, उनको फिरना, जो गुड्डी उड़ा रहा हो उसको पकड़ना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। तो लिहाजा यही है कि इनको अपना रोकथाम करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपना ऐलान कर देती है कि ये गुड्डियों पर पाबंदी है, हर थाने में भी ऐलान होता है, हर मोहल्ले में भी, मस्जिदों में भी ऐलान होता है, लेकिन हमें भी चाहिए, हम शहरी हैं, हमारे बच्चे हैं, ये दूसरों के बच्चे हैं, सबको ये चाहिए जिनको ये शौक़ है, उन्होंने अपना शौक़ करना तो कहीं खुली जगह पे चले जाएं, लाहौर से बाहर चले जाएं। उनको अपने बच्चों को मना करना चाहिए कि किसी की जिस पे जान जाए वो हम उसके हक़ में नहीं है। तो इसलिए ये मेरा पैगाम सबको यही है कि अपने बच्चों को मना करें, जो गुड्डियाँ उड़ाते हैं, जो खुद को जिसको भी शौक़ है वो मेहरबानी करे कि जनाब अपने बच्चों को मना करें। बेटा हमें तो कहते हैं भी जिस गली मोहल्ले में ये हो काम, उसी टाइम वही कोई कंप्लेन करे, पुलिस आए उनको पकड़े, कोई भी नहीं करता। बच्चे उड़ाते हैं गुड़ियाँ, तो जब गला काट जाता फिर पुलिस आती है। ये सही बात नहीं, भी उसी टाइम ये निगरानी भी रहे, इनकी नज़र में रहे भी ये कहाँ पे गुड्डी उड़ा रहे हैं बच्चे, तो ये देखें फिर उस टाइम आए, उनको पकड़ें। तो इतनी जानें ज़ाया हो गई हैं, कल हमारा बच्चा भी जा सकता है, उनका भी जा सकता है, तो ये ख़तरे वाली बात है। उनको चाहिए भी वो देखें, उनकी ड्यूटी है, वो सही अंजाम दें। पहले बच्चे ये काम नहीं होता था, अब ज़्यादा हो गया, मना करने के बावजूद ही बच्चे नहीं हटते, उड़ाते हैं। मेरा भी बच्चा कई दफ़ा हम मना करते हैं, कहते मासूम बच्चे हैं, उनकी कई जानेंगे बच्चे, ना ऐसा काम करो, लेकिन बच्चे नहीं मना होते। सख्ती हो बच्चों पे तो फिर वो मना होंगे। रंगबाजी जैसे खूनी खेल को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की जानिब से ऐलानात तो किए जाते हैं, SHOs को मुअत्तल भी किया जाता है, लेकिन कानून साजी की इस मामले में ज़रूरत है, जो हुकूमत और हुकूमतों की ही जिम्मेदारी होती है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।